This is the second video for class 10th, and in this video we will study about the indicators. Indicators क्या है? As we already studied in the previous classes or previous videos, the substance which having short taste, जिसका टेस्ट खट्टा हो, टेस्ट कब करेंगे जब चखेंगे, then जिसका टेस्ट खट्टा है that will be an acid. The substance which having bitter taste that will be base. But if you try to check each and every substance while tasting, that there are some substance which is very corrosive, very poisonous. अगर उसको आप लेंगे तो हो सकता है कि आप मर भी जाए. To identify that given substance is whether an acid or a base, the scientist, the chemist made indicators. Indicators उन्होंने बनाए. We change its color when it come in contact with an acid or a base. जब वो कभी भी एसिड के साथ आएंगे कांटेक्ट में या बेस के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो उनका कलर चेंज होगा. So in this chapter we will study about the indicators. Indicators is mostly divided into two parts. तो दो पार्ट्स में बांटा गया है. First one will be natural indicator. And second one will be synthetic indicator. नेचुरल इंडिकेटर्स में कौन आएगा? जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं. द फर्स्ट वन विल बी लिटमस पेपर. लिटमस पेपर. सेकेंड वन विल बी रेड कैबेज. थर्ड वन विल बी चाइना रोज. And fourth one will be turmeric, haldi. If you talk about the synthetic indicator, first one will be methyl orange, and second one will be phenolphthalein. Now we will try to understand each and every one by one. But before that, I want to make one thing clear. एक चीज आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ. How these indicators is formed doesn't matter. आपके 10th में यह नहीं पूछे जाएगा कि अगर आपका लिटमस पेपर कैसे बना है, रेड कैबेज कैसे बन रहा है, चाइना रोज, ये सब जो इंडिकेटर्स से कैसे बन रहे हैं. It will be only asked, यह पूछा जाएगा कि ये जो इंडिकेटर्स है when come in contact with an acid and base, तो इसका कलर में चेंजेस क्या होगा. That only will be asked. How it is formed, it will not ask. ये पूछा नहीं जाएगा और ना ही किसी एग्जाम में पूछा गया है. So let's start with first one, litmus paper. Litmus paper से start करते हैं. Litmus paper, it is an natural indicator. ये natural indicator है. ये कहाँ से निकला है तो ये क्लीचन प्लांट से निकला हुआ है. What we have to do, we have to take one paper, white paper लेना है. Take out the liquid from that plant. इस प्लांट से लिक्विड निकाल करके जिसका कलर क्या होगा? पर्पल. पर्पल कलर हैविंग. व्हाइट पेपर पे इसको हम लोग डाल देंगे. It requires the purple color. When this purple color come in contact with an acid or base, जब ये acid और base में contact में आएगा तो क्या होगा? When it come in contact with acid, it turn into red. और यही purple color come into contact with the base, it turns to. और यही red और litmus paper को यूज करके आप आइडेंटिफाई करते हैं the given substances whether an acid or a base. Acid में क्या होगा? Blue litmus paper turns to red. और रेड लिटमस पेपर को अगर लिए हैं तो रेड टू रेड ही रह जाएगा, कोई कलर चेंज नहीं आएगा. बट व्हेन इट कम इन कांटेक्ट विद ए बेस, बेस के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो ब्लू का ब्लू ही रह जाएगा. बट रेड लिटमस पेपर टर्न्स टू ब्लू. These are the changes comes when come in contact with acid or base. Now second one will be China rose. China rose को लेते हैं. चाइना रोज आप लोग फूल देखे होंगे. We have to collect some petals of China rose plant.
पेटल्स को लेना है। एंड वी हैव टू टेक सम वाटर, पानी लेना है, add these petals in that and boil it for 10 to 15 minutes. The color of water will be changed, water color का change हो जाएगा. It the first one, the color of water is colorless but it some becomes some dirty, थोड़ा सा गंदा हो जाएगा. Now what when it come in contact with an acid, acid के साथ contact में आएगा तो क्या होगा? When it come in contact with acid, that color change into a magnet. और मैग्नेटिक हम लोग डार्क पिंक भी कहते हैं. But when it come in contact with a base, एसिड के साथ कांटेक्ट में आया तो जो लिक्विड जो था वो चेंज होकर क्या हो गया है, डार्क पिंक कलर में आ गया है. बट व्हेन इट कम इन कांटेक्ट विद ए बेस, अगर बेस के साथ कांटेक्ट में आएगा तो ये कलर जो होगा उसका चेंज किस में हो जाएगा, दैट चेंज विल बी ग्रीन. एसिड के साथ कांटेक्ट में आएगा दैट टर्न इनटू मैग्नेटा, उसको डार्क पिंक भी कहा जाता है. एंड व्हेन इट कम कांटेक्ट विद ए बेस, बेस के साथ कांटेक्ट में आएगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा ग्रीन में. नाउ थर्ड वन विल बी रेड कैबेज, लाल बंधा गोभी. What we have to do, हमें क्या करना है? We have to take red cabbage and chop it in small piece, छोटे छोटे पीस में हम लोग उसको तोड़ देंगे, काट देंगे. And now we will boil it, उसको उबाल लेंगे. क्या कर लेंगे? उबाल लेंगे. जैसे उस पानी को उबालेंगे the colorless water change into purple color. पर्पल कलर. एंड व्हेन इट कम इन कांटेक्ट विद एन एसिड, एसिड के साथ कांटेक्ट में आएगा देन कलर पर्पल कलर ऑफ दिस एसिड विल चेंज इनटू रेड. एंड व्हेन इट कम इन कांटेक्ट विद द बेस, और बेस के साथ कांटेक्ट में आएगा जो पर्पल कलर है वो चेंज हो जाएगा ग्रीन में. क्लियर? कैबेज का है पर्पल कलर में आ जाएगा, जब इसको पानी में उबालेंगे तो पर्पल कलर, जब एसिड के साथ कांटेक्ट में लाया जाएगा तो रेड एक्वायर हो जाएगा, और जब बेस के साथ कांटेक्ट में लाया जाएगा तो इसका कलर ग्रीन हो जाएगा. नाउ फोर्थ वन दैट इज टर्मरिक, हल्दी. ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, और नेचुरल इंडिकेटर है, इसके थ्रू भी हम लोग एसिड और बेस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है. टर्मरिक, इसका कलर क्या होता है? येलो होता है. और जब ये कभी भी एसिड के साथ कांटेक्ट में आएगा या फिर वाटर के साथ कांटेक्ट में आएगा तो जो येलो कलर है, इट हैविंग येलो कलर विल बी नॉट चेंज, इट विल बी इन येलो ओनली. बट वेट इट कम इन कांटेक्ट विद ए बेस, बेस के साथ कांटेक्ट में आएगा तो येलो कलर चेंज टू रेड, इसका कलर क्या इसमें चेंज हो जाएगा, रेड में हो जाएगा. कोई दिक्कत? नाउ कम्स टू अबाउट द सिंथेटिक इंडिकेटर. फर्स्ट वन मिथाइल ऑरेंज. मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज आ गया है, इसका कलर मतलब क्या है, ऑरेंज ही है. मिथाइल ऑरेंज. When मिथाइल ऑरेंज कम इन कॉन्टैक्ट विद एन एसिड, इसका कलर क्या है, ऑरेंज है, इट टर्न्स टू रेड. और यही मिथाइल ऑरेंज को अगर आप बेस के साथ कांटेक्ट में लाएंगे तो ऑरेंज कलर चेंजेस टू येलो. कोई दिक्कत? नाउ फिनोप्थलीन, लास्ट वन इज फिनोप्थलीन. हो सकता है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो, चेक कर लीजिएगा. फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन का जो कलर जो होता है वो कलरलेस होता है, इट डजंट हैव एनी पार्टिकुलर कलर, कलरलेस. बट व्हेन इट कम इन कांटेक्ट विद एन एसिड, एसिड के साथ कांटेक्ट में आएगा तो कलरलेस है, जो कलरलेस ही रहेगा. बट व्हेन इट कम इन कांटेक्ट विद ए बेस, बेस के साथ कांटेक्ट में आएगा देन इट्स कलरलेस चेंज इनटू पिंक. ये थे आपके इंडिकेटर्स. अब एक और वर्ड आ गया है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होता है, जिसको हम स्मेल करते हैं, सूंघ करके बताते हैं, सूंघ करके बताते हैं.
सूंघेंगे, अगर उसका बदबू चला जाएगा, कोई बदबू चेंजेस नहीं जा रहा है, कोई बदबू स्मेल उसका नहीं जा रहा है, देन दैट विल बी एन एसिड। और कलर उसका बदबू चला जा रहा है, दैट विल बी बेस। इसमें दो दिया गया है, आपका ओनियन दिया गया है और साथ साथ वेनिला दिया गया है। ये दोनों जब कभी भी कांटेक्ट में आएंगे एसिड के साथ, उसका बदबू नहीं जाएगा। जब जैसे ही वो बेस के साथ कांटेक्ट में आ जाएंगे तो उसकी बदबू चली जाती है। थैंक यू।